All right, welcome back. स्वागत है आपका एक और बार। So, we are talking about the local church, the body of Christ. हम जो स्थानीय कलीसिया जो परमेश्वर का शरीर है या देह है उसके बारे में देख We रहे हैं। are his hand and his feet, हम उसके शरीर है, उसके हाथ पांव है and we do what he wants us to do. और हम वो करते हैं जो वो हमसे चाहता है। We represent him in this world. हम इस दुनिया में उसके प्रतिनिधि हैं। So, how can we practical ways that we can implement this in the local church? और किस प्रकार से व्यवस्थित रीति से हम इसको हमारे कलीसिया में काम में कार्य में ला सकते हैं। Remember that our identity and our life flows from Jesus. और हमारा पहचान जो हमारा जीवन है परमेश्वर से आता है। So, as a local church, we must teach our congregation. हम एक स्थानीय कलीसिया होने के कारण लोगों को सिखाना जरूरी है That our identity flows from Jesus. कि हमारा पहचान जो है यीशु में से होता है। It's not about our identity doesn't flow from our title or from the church that we serve in. हमारे नाम के पीछे जो पहचान या नाम दो जी शीर्षक जो दिया जाता है उसके अनुसार नहीं है हमारा पहचान। Remember, we talked about identity. हमने आपको याद होगा कि पहचान के विषय में हमने पढ़ा My था। identity is not pastor. मेरा पहचान जो है पास्टर करके नहीं है। My identity is I'm a child of God. मेरा पहचान है कि मैं परमेश्वर का संतान। And God has given a role of the pastor. और परमेश्वर ने मुझे एक पादरी होने का काम नियुक्त किया है। So it doesn't matter to me if people call me pastor, brother, whatever it is, it doesn't matter. मेरे को इससे मतलब नहीं है कि लोग मुझे पासबान बुलाएं या भाई बुलाएं। Don't call me sister, but लेकिन मुझे बहन करके कोई ना बुलाए। brother, Paul, pastor, whatever it is. भाई, पॉल, पासबान कुछ भी हो, My identity will not change. मेरा पहचान वहीं से कभी भी नहीं बदलेगा। You understand? क्या आप समझ So पा we रहे must हैं? teach our people. हम अपने लोगों को सिखाना है। Two, as his body, we must represent Jesus and reveal Jesus to people. और उसके देह होते हम परमेश्वर को एक प्रतिनिधि के समान रहना है। Now, what are some of the challenges to be prepared for? और कुछ चुनौतियां जो है वो उसके लिए हम कैसे तैयार रहना है। Now, there are people from different cultural and social backgrounds. अलग अलग संस्कृतियों से और समूह के रीति से आने वाले लोग हैं। You know, India as a nation, we come from different cultures. We have different cultures and different backgrounds. हमारे हिंदुस्तान में जो है अलग अलग संस्कृतियां हैं। Right? Some of them, you know, we have different languages. हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाएं हैं, different cultures, अलग अलग संस्कृतियां हैं। So and sometimes people come from towns and villages, they come to a city. और कभी कभी लोग जो हैं गांव से शहर की ओर आते हैं। So as a pastor and a leader, I must be able to communicate to them in the way they can understand. और एक पासबान के चलते मुझ में ये क्षमता होना चाहिए कि उनके अनुसार मैं उनसे बातचीत कर सकूं। So don't promote one culture or one language or one group of people. और आप जो है किसी भी एक समूह या किसी भी एक संस्कृति को प्रचार ना करें। Right? So treat everyone equally. सब लोगों को एक समान से देखें। In every area, treat everyone equally. हर एक क्षेत्र में सब व्यक्ति को एक समान देखें। If a person comes by car to church, अगर एक व्यक्ति कार के साथ कलीसिया आता है, another person comes by bike, और दूसरा व्यक्ति बाइक में आता है, I should not be treating them, you know, with favor. और उनको जो है मुख्य स्थान के अनुसार नहीं उनको देखना है। All are equal. सब लोग एक समान हैं। This is some challenge that we will face, and we have to overcome those challenges. ये कुछ चुनौतियां हैं, हम उनको सामना करेंगे और उसके ऊपर विजयी होना है। Now, another challenge we may see is misapplication of being one body.
और दूसरा चुनौती है कि गलत रीति से समझ जाना कि हम परमेश्वर के एक शरीर हैं। So sometimes people go to, they're part of one church and then you keep going to different churches, keep floating around. और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो हैं, विश्वासी जो हैं, एक कलीसिया के सदस्य होते हैं लेकिन अलग अलग कलीसियाओं में वो जाते रहते हैं। Remember, we talked about the physical body. Our parts don't float around. और याद होगा हमने सीखा था कि हम हमारे शरीर को देखते हैं कि हमारे अंग जो हैं विभिन्न जगहों पर अपने आप में नहीं जाते हैं। Right? So we get connected to one local church. हम जो है एक स्थानीय कलीसिया के साथ जुड़े रहते हैं। And so as pastors, we must teach the importance of being in a local church. और पासबान होते हमें सिखाना जरूरी है कि एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य होना कितना महत्वपूर्ण है। That's what we're talking about in the next chapter. वही चीज है जो हम अगले पाठ नंबर 9 में देखते हैं। Chapter 9 says the local church is the family of God. और जो स्थानीय कलीसिया है परमेश्वर का परिवार है। Now, for example, my parents get upset and shout at me. और उदाहरण से मेरे माता पिता जो है मेरे ऊपर गुस्सा होकर मुझ पर चिल्ला सकते हैं। Now, I don't go to my neighbor's house and say, okay, now you are my family. और मैं अपने पड़ोसी घर में जाकर ये नहीं बोलता कि अब तुम मेरे परिवार हो। No, I'm part of this family. मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। I've been born and brought up in this family. और मैं इस परिवार के अंदर पैदा हुआ, So my parents have the right to correct me, to exhort me, to rebuke. Yeah. और मेरे माता पिता के पास अधिकार है कि वो मुझे सही करें, मुझे बता कर दे और मुझे सही रास्ते पर लेकर आए। So the local church is a spiritual family that God has for us. और स्थानीय कलीसिया जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक परिवार है। Now there are hundreds of churches in Bangalore. बेंगलोर के शहर के अंदर अनेकों कलीसियाएं हैं। Wonderful churches. बहुत अच्छे चर्च हैं। And each of them are a family. और एक एक कलीसिया जो है अपने में एक परिवार है। They get connected with each other very quickly. और एक दूसरे के साथ बड़े आराम से जुड़ते हैं। Why is that? क्यों है ऐसा? Because there's a sense of family. This is my brother, this is my sister. क्योंकि उनके अंदर एक सोच है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। Look at Peter, 1 Peter chapter 2 verse 5. He says, you also as living stones are being built up a spiritual house. और पहला पत्रोस उसका 2:5 में देखें, तुम भी अब आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर में बनाए जाते हैं। Right? Remember, the bigger picture is God sees us as one. देखें कि ये बड़ी पैमाने में जो चित्र है वो ऐसा है कि प्रभु परमेश्वर हमको एक परिवार के समान देखता है। But God has also instituted local churches that we have to be part of. और परमेश्वर ने उसी के साथ स्थानीय कलीसियाएं भी नियुक्त किए हैं। Right? So the local church is a family. स्थानीय कलीसिया जो है एक परिवार है। We learn to love each other. हम एक दूसरे से प्रेम रखना We learn सीखते to हैं। respect each other. हम एक दूसरे का सम्मान रखने We की care for each other. हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। When somebody falls down, you lift them up. और कोई जब गिर जाता है उसको उठाते हैं। When they are weak, you be the strong one. वो जब निर्बल हो जाते हैं हम उनका बल बन जाते हैं। There's no backbiting, there's no gossip, there's no anger, there's no jealousy. पीठ पीछे बोलना, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब का स्थान नहीं है वहां पर। But let's look at 3 important implications of the local church being a family. और 3 ऐसी जरूरी कार्यों को देखें जो एक लोकल स्थानीय कलीसिया में होना चाहिए। God wants us to behave appropriately. परमेश्वर चाहता है कि हम सही उचित स्वभाव दिखाएं in the local church. स्थानीय कलीसिया में। Right? Now, there's a way to behave एक रीति है जिस प्रकार से हम स्वभाव दिखाना when है we are in the local church. जब हम एक स्थानीय कलीसिया We में can't behave like we can't talk however we want to talk or do whatever we want to do. और हम जिस प्रकार से किसी भी तरीके से हम बातचीत करना चाहते हैं या व्यवहार करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते स्थानीय कलीसिया। So there are boundaries between the natural and the spiritual.
यहाँ पर जो है प्राकृतिक और आत्मिक के बीच में एक सीमा है। See, Paul is writing in Thessalonians, he's encouraging the church तेस्सलोनियों की किताब में पौलुस ऐसा प्रोत्साहित करता है that we have to walk wisely, balancing our understanding. और हमें बुद्धि के साथ सब चीजों को संतुलित करते हुए चलना है। So, for example, उदाहरण वह, mostly it happens in towns and villages where everyone say, hi brother, hi sister. और साधारण रीति से शहरों में और छोटे शहरों में ऐसा देखा जाता है, एक दूसरे को हाय ब्रदर हाय सिस्टर बोलते हैं। And then we also have the spiritual father and the spiritual mother. We learn about that a little more later on. और हमारे पास आत्मिक पिता और आत्मिक माताएं होती हैं जिसके बारे में आगे चल के हम सीखेंगे। But a spiritual father or mother or a spiritual brother or sister cannot make the decisions for your life. और आपके जीवन के निर्णयों के ऊपर आत्मिक पिता, आत्मिक माता, आत्मिक भाई या बहन निर्णय नहीं ले सकते। They cannot tell you go to this job. वो लोग ये नहीं कह सकते कि आप इस काम के लिए जाएं, Don't do this. ऐसा मत करो, Or you sell this. आप इसे बेच दो। You have to do whatever I tell you to do. मैं जो भी कहता हूं या कहती हूं वही करना है। There are boundaries. यहाँ पर एक सीमा है, If एक दायरा I, है। as a believer, if I have to make a decision about my family, अगर एक विश्वासी के चलते अगर मैं अपने परिवार के बारे में निर्णय लेना है, I will discuss this with my wife and my parents. I'll discuss together. It's a family issue. और ये एक पारिवारिक विषय होने के कारण मैं अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ चर्चा करूंगा। I can talk to the people that I know and ask them, oh, hey, pray for me. मैं जिन लोगों को जानता हूं उनसे कह सकता हूं, हे भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। But they cannot say you have to do this. लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ये करना है। So there's a balance. We must understand this balance. एक संतुलन को बनाए रखना है और उस संतुलन को हमें समझने की जरूरत है। Just because pastor said go sell your house, don't go and sell your house. क्योंकि पासबान ने कहा कि अपना घर बेच दो तो जाके घर मत बेच देना। And this is a common occurrence in towns and villages. और छोटे शहरों में और गांव में ऐसा एक देखी जाने वाली बात है। Sometimes we are so filled with the Holy Spirit, कभी कभी हम पवित्र आत्मा से इतना भर जाते हैं, this mind, or we switch it off. और हम अपने मन को बंद कर देते। Yes or no? हाँ या ना? परमेश्वर ने बोला, only God is telling. परमेश्वर ने बोला है, सिर्फ परमेश्वर बोलता है। But what about this? लेकिन मन का क्या? We must use our mind. लेकिन हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। A family has culture, it has values, they have purposes. एक परिवार के अंदर संस्कृति है, उसमें गुण है, मूल्य है। And each culture is different to each place. और एक एक संस्कृति विभिन्न अलग है दूसरे संस्कृति से। If you go to Andhra Pradesh, it's a different culture. अगर आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो एक दूसरा संस्कृति है। It's maybe just 200 kilometers away, but their culture is completely different. हो सकता है 200 किलोमीटर दूरी होगा, लेकिन उधर का संस्कृति अलग है। You go to Kerala, there's cultures completely different. आप केरल जाएं तो वहां पर एक संस्कृति अलग है। And you go up North India, the culture is very different. आप उत्तर भारत की ओर जाएं तो वहां की संस्कृति अलग है। The culture defines our purposes, our values. संस्कृति जो है निर्णित करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, सोच विचार क्या है। So we've just mentioned a few here at APC. What is our culture, our values? What is our purposes? और एपीसी में हमने यहाँ देखा है कि क्या है हमारा संस्कृति और हमारे मूल आधार क्या है। There are many points, but let me pick up one or two points. Number one, everyone is a minister. यहाँ पर कई अंक दिए गए हैं, लेकिन मैं एक उसमें से उठाना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति जो है सेवक है। You can be new to the church for just 2 months. You're still, you can still minister in the church. आप 2 महीना ही हुआ होगा कलीसिया में आकर जुड़कर, लेकिन आप वहां पर तभी भी एक सेवक हो सकते हैं।
There's no prerequisites. वहां पर पहले से कुछ नियमित बातें नहीं है। We have a balance. We are led by the word, led by the Spirit. हमारे यहाँ एक संतुलन है कि हम वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवे किए जाते We हैं। have certain values. हमारे अंदर कुछ रीतियां हैं। Number one, walk in integrity. पहला है कि आप अनिष्ठा ईमानदारी से चलें। Integrity. Even when nobody is घनिष्ठता। watching. आप Even when nobody is watching. जब कोई आपको नहीं देख रहा हो, Know that God is watching. समझ जाएं कि परमेश्वर आपको देख रहा है। So we work with that value. और उस मूल आधार के अनुसार चलें। Be excellent in everything that we want to do. जो कुछ करते हैं उत्तम रहें उसमें। Right? We provide opportunities with everyone, for everyone. और सभी व्यक्तियों को मौका दिया जाता है। Work in unity. एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम So करें। yesterday I mentioned, right, to have one conference, और कल मैंने बताया था कि एक कॉन्फ्रेंस, we need the media team, you need the IT team, you need the volunteers, you need the sound team. So many teams are involved together. और वो कॉन्फ्रेंस को चलाने के लिए मीडिया का टीम जो है, आईटी टीम जो है, साउंड टीम जो है, ये सब टीम की जरूरत है ताकि हम वो टीम को मंडली को चला सके। It's not one person's work. और वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, It's a team effort. वो एक टीम के साथ What काम is होता some है। of our purposes? हमारा उद्देश्य क्या है? Glorify the name of Jesus. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Make it impact wherever we go. जहां भी जाते हैं वहां पर एक छाप छोड़ दे। Equip every believer for ministry. और हर एक व्यक्ति को तैयार करे परमेश्वर की सेवकाई के लिए। Equip people for ministry. और लोगों को तैयार करे परमेश्वर की सेवकाई के लिए। What is our dream? हमारा सपना क्या है? We already have 5 churches here in Bangalore, but we want to start many more churches. बैंगलोर के अंदर 5 कलीसिया है और अभी से, और हमारा इच्छित सपना है कि और ज्यादा कलीसिया शुरुआत करें। In Bangalore, across, out of Bangalore, and the entire nation and the nations. और पूरे बैंगलोर के अंदर, ये हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर हर एक जगह पर। So that's the vision. वो है हमारा दर्शन। That's the dream that we have. वो है हमारा सपना। And God will open the right door at the right time. और उचित समय पर परमेश्वर उचित द्वार खोल कर देगा। Amen? आमीन। It doesn't cost to dream big. ये सपना देखने के लिए बहुत मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। Dream big. सपना, बड़ा सपना देखें। When I was about 20 years old, when I just became a believer, सर जो है 20 साल के थे जब वो अगुवाई में आए। 20 or 21 years old. 21 या 20 साल के। My work was to clean the chairs और मेरा ये काम था कि कुर्सी को सफाई करूं in church. कलीसिया में। Every day, go and clean the chairs. हर दिन मैं जाऊं और कलीसिया के कुर्सी को सफाई करूं। But I knew that one day I will preach and teach the gospel. और मेरे को ये मैं आश्वस्त था कि एक दिन आएगा जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करूंगा, सिखाऊंगा। I knew that one day I will lead the worship. एक दिन आएगा जब मैं आराधना को अगुवाई दूंगा। But it took many years. लेकिन वो बहुत साल लगा। It was hard. वो बहुत Waiting. कठिन था इंतजार करना। But at the right time, God opens the door. लेकिन उचित समय में परमेश्वर ने उसको खोल कर दिया। So what am I trying to say? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, Is you be faithful in what you're doing. आप जो कुछ कर रहे हो उसमें विश्वस्त रहें। Even though nobody may see it. हो सकता है कोई आपको देख नहीं रहा हो, Nobody is clapping. कोई भी ताली बजा नहीं रहा हो, There will come a time लेकिन एक समय आएगा when you see your vision. आपके दर्शन को आप You're देखोगे working towards that vision. और उस दर्शन की ओर आप चल रहे हो God will fulfill it. और परमेश्वर उसको पूरा करेगा। And I used to sit in Bible college class. और मैं बाइबल कॉलेज की क्लास में बैठा करते थे And I used to think, one day I want to teach in Bible college. और उनका प्रार्थना था कि एक दिन मुझे बाइबल कॉलेज में पढ़ाना है। I don't know how to teach. मैं नहीं जानता कैसे I don't know पढ़ाऊंगा, how anything from the Bible. I मुझे बाइबल के अंदर से ज्ञान नहीं है। said, God, one day I want to teach. लेकिन मैं कहता था परमेश्वर एक दिन मुझे सिखाना है। But there was a lot of effort involved as well. और बहुत सारा परिश्रम उसमें है। Right? A lot of sacrifice, reading,
going through the scriptures, spending many hours. त्याग, कई चीजों को त्यागना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अध्ययन करना, प्रार्थना करना, But the vision was there. लेकिन एक दर्शन था मेरे अंदर। So, as a leader, as a pastor, you cast the vision. और members. आप एक पासबान होने के नाते आप अपने दर्शन को विश्वासियों के अंदर छोड़ें Walk in brotherly love. और भाईचारे में चलें। Walk in unity and fellowship of the Holy Spirit. These are things as leaders we must do first. और एक सेवक होने के नाते, अगुवे होने के नाते पवित्र आत्मा के साथ, एकता के साथ चलें। ये सारी चीजें जो है पहले हमें करना है। If I as a leader I'm always searching for fights or searching for misunderstandings, और एक अगुवा होने के नाते हमेशा मैं वहां लड़ाई कहाँ हो रहा है, तर्क वितर्क कहाँ हो रहा है, इसको अगर खोजता रहूं, then what will happen is even in the church we will find the same thing going on. और वो क्या होगा, अंततः हमारे कलीसिया के अंदर भी वैसा ही होता हुआ हम Now देखेंगे। we can't blame the congregation. हम जो है हमारी मंडली को दोषी नहीं ठहरा We सकते। should blame ourselves first. मैं अपने आप को दोषी पहले ठहराना, Change our heart मेरे हृदय को बदलें and then begin to lead the church. और उसके बाद कलीसिया की अगुवाई करें। And that's why as a leader it's very important that we spend time in God's presence. इसीलिए एक अगुवाई के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करें। God begins to clean us up. He says, okay, don't do this, don't do this. और परमेश्वर क्या करेगा, अब हमें धोना शुरू करेगा, शुद्ध करना शुरू करेगा, ये करो, ये मत करो। In a family, everyone works. एक परिवार के अंदर सब लोग काम करते हैं। I said this, right? I have two brothers, और two elder brothers. सर के पास दो बड़े भाई हैं। Growing up at home, we all worked. और घर में जैसे से बड़े होते थे, हम सब एक साथ काम करते थे। We all had certain responsibilities to हम fulfill. सबके पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारी था करने के लिए। My responsibility was when I wake up, at a certain age, when I wake up, I had to sweep the house. मेरा जिम्मेदारी था एक उम्र होने के बाद कि मैं जब उठूंगा, अपना बिस्तर छोड़ूंगा तो मैं झाड़ू लगाऊं। My brother's responsibility was to mop the whole house. और मेरा भाई का जिम्मेदारी था कि घर में पोछा लगाऊं। My other brother's responsibility was to make sure that in the kitchen, whenever my mom is there, he should go and help out. और मेरा दूसरे भाई का जिम्मेदारी ये था कि मेरी माँ जब किचन में जाएगी तो वहां जाकर वो उनकी सहायता करे। In a week, we all had responsibilities. One person goes to buy vegetables, one other person goes to buy another. So we all had responsibilities. हमारे हर एक लड़कों में हम हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी था। एक व्यक्ति सब्जियां खरीदने के लिए जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे कामों करने के लिए जाएगा। So everyone works in a house. और परिवार के अंदर सब लोग जो है काम करते हैं। So the local church is not a place where we come, sit, just listen to the sermon, say amen, hallelujah and go home. और स्थानीय कलीसिया ऐसा नहीं है जहां पर लोग आते हैं, वचन को सुनते हैं और हालेलुया बोल के निकल जाते हैं। It's a place of learning. ये एक जगह है जहां पर हम सीखते हैं, We apply it in our life वो हमारे जीवन में अनुकूल करते हैं and we work. और उसके ऊपर हम कार्य करते We हैं, serve. हम सेवा करते हैं। And this is a mentality that we must, as leaders, we must first set the example. और ये एक सोच विचार है जो अगुवे होने के नाते हमें पहले करना है। If I set the example, then I can tell others to do. अगर मैंने एक उदाहरण को दूसरों के सामने रखा है तभी मैं दूसरों को कह सकता हूँ। If I can't do and I'm telling you to do, there's no use, there's no weightage there. अगर मैं नहीं कर रहा हूं और आपको मैं करने को कहूं तो उसमें कोई घनिष्ठता नहीं है। Amen? Amen. Right? So as leaders, it's very easy to tell, but it's not so easy to do. और एक अगुवे होते हुए बहुत आसान है दूसरों को करने के लिए बोलना, खुद करना कठिन है। Now in a church, कलीसिया में you will have this spiritual fathers, spiritual mothers, spiritual sons and spiritual daughters. एक कलीसिया के अंदर आत्मिक पिता, आत्मिक माता, आत्मिक बेटा, आत्मिक बेटी होंगे। Now I'm going to be a little straightforward now. मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधा बोलना चाहता हूं। This whole thing of fathers and mothers,
sons and daughters ये पूरा चीज जो माता पिता बेटा और बेटी का, is very biblical. वो वचन अनुसार। Paul writes to the believers in Galatians. He says to them, you are be like fathers and mothers, sons and daughters. और गलतियों के सभा को जब पौलुस चिट्ठी लिखता है, बोलता है स्पष्ट रीति से कि माता पिता होए। But what has happened is over time we have taken this spiritual father and spiritual mother to another level. और समय के चलते हुआ ऐसा कि ये जो आत्मिक पिता, ये आत्मिक माता का जो विचार था, उसको हम जो है दूसरे एक तल में लेके चले गए। Not much of it happens in cities, but normally in towns and villages I've seen this. और शहरों में, बड़े शहरों में नहीं होता हुआ देखते हैं, लेकिन मैंने गांव में और छोटे शहरों में होते हुए देखा है। So I met this young man many years ago. कुछ कई सालों पहले ये जवान व्यक्ति के साथ में I भेंट was हुआ। out on I think missions in somewhere in North India. उत्तर भारत में किसी मिशन ट्रिप में। So this young boy was saying, pray for my family. My mother is not well. My father is the only one working. और इस जवान लड़के ने बोला कि मेरे घराने के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी माता का तबीयत खराब रहता है, मेरा पिता ही है जो काम करता है। Going through financial difficulties. हम जो है आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। So I asked him, what are you doing? मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? He said, I finished my degree. उसने कहा कि मैंने अपना डिग्री खत्म कर लिया है। So what are you doing after degree? और मैंने पूछा कि डिग्री के बाद आप क्या कर रहे हो? He said, I'm in charge of the church. I handle all the cell groups, life group, and I open the church, close the church. और उन्होंने कहा, वो लड़के ने कहा कि मैं कलीसिया के अंदर जिम्मेदारी में हूँ, कि मैं कलीसिया को खोलता हूँ, बंद करता हूँ, कोशिका मंडली का को चलाता हूँ, लाइफ ग्रुप को चलाता हूँ। So I asked him, so are you a paid staff? Are you getting a salary? Are you a staff in the church? और मैंने उससे पूछा कि क्या आपको वेतन दिया जाता है He कलीसिया said, में? no, I'm just doing this as a volunteer. और उसने कहा कि ना, ऐसा नहीं है, मैं स्वयं इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। So I said, why don't you go get a job? तो मैंने पूछा कि क्यों ना तुम जाके कोई काम ढूंढ लो। So he said his spiritual father उनने कहा कि उनके आत्मिक पिता told him he has to be in full-time ministry. कहा कि तुम्हें पूर्ण समय की सेवकाई में उतरना है। If you get a job, it's like putting money in a pocket full of holes. और उनने कहा है, आत्मिक पिता ने कहा है, अगर तुम एक दूसरा काम ढूंढ लेते हो, वो पैसा उस प्रकार से होगा कि छेद वाले जेब में डालने के समान। I remember telling him, मेरे को याद है कि मैंने उनसे जो कहा, you tell your spiritual father, कहा कि आपके आत्मिक पिता से ऐसा कहो, I'm going to go join a job first. मैं पहले एक काम में होने वाला हूं, Get a job काम पाकर, and then do all of this. और उसके साथ में ये सारे काम करूंगा। Because your spiritual father doesn't have anybody to open the church, clean the church, you are sitting and doing it. और क्योंकि आपके आत्मिक पिता के पास कोई भी नहीं है कि वो कलीसिया को खोले या बंद करे और ये सब कार्यों को करे, इसलिए तुम यहाँ बैठे हो। And now your natural father is sitting in the hospital. और आपके जो शारीरिक जो पिता है वो अस्पताल में है। And you're not able to give money to the house. I'm going to pray for you. I'll pray that you get a job. और आपको जो है परिवार में पैसा देने के लिए आपके पास नहीं है, मैं जरूर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको काम मिल जाए। Now, after saying all this, he was very disturbed. और ये सब बोलने के बाद वो लड़का जो है बेचैन हो गया। Because he said, how can I tell my spiritual father said, don't join a job. और मैं किस प्रकार से अपने आत्मिक पिता से ये बात बोलूं, क्योंकि मेरे आत्मिक पिता ने कहा है कि कोई भी काम में नहीं जाना। I don't know what he did after that. वो मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद उस जवान लड़के ने क्या किया। But this is just one of the situations. ये एक परिस्थिति है। See, a spiritual father and mother should only guide and build the person up spiritually, not take control over them. और एक आत्मिक पिता या माता होने से वो लोग जो है एक अपने वो लोगों का जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सिखाएं, बढ़ाएं आत्मिक विषयों में, ना कि उनका अधिकार ले ले। Right? So, if there's an influence over your life, or you have an influence over somebody else that way, और इस प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपका जो मतलब अधिकार हो या किसी और व्यक्ति का आपके ऊपर अगर अधिकार है,
I would suggest that you go and make things clear and do what is right. और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है उस कार्य में सही करें और आपके जीवन को भी सही करें। Then we have a son mentality and a servant mentality. यहाँ पर दूसरा एक चिंता सोच विचार है पुत्र का और सेवक का। So this is a mentality that people have. We must help them develop in the church. और ये जो सोच विचार है कलीसिया के अंदर तैयार करने वाली बात है। If I have a son mentality, अगर मेरे अंदर एक पुत्र की सोच विचार है, I will do anything that has to be done in the local church. और स्थानीय कलीसिया में कुछ भी करने की जरूरत है मैं वो पूरा करूंगा, I'll do it. मैं कर लूंगा, No problem at all. कोई भी परेशानी नहीं होगा। If I have a servant mentality, लेकिन अगर एक सेवक का जो सोच विचार होगा, now listen, a servant will work in a house. एक सेवक जो है, दास जो है, सेवक जो है एक घर में काम करेगा। Not das, सेवक, servant. सेवक, Right? He will work in a house. वो घर पे काम करेगा। But if he gets a higher paying job in the neighbor's house, he'll go there. और अगर अपने उसी के पड़ोस के घर में उससे यहाँ मिलने से ज्यादा पगार मिलेगा तो वो वहां चले जाएगा। Now, if my father gives me pocket money, 500 rupees a month, अगर मेरा पिताजी 500 रुपए मुझे जेब खर्चे के लिए देता है, and my neighbor gives me 1000 rupees a month, और मेरा पड़ोसी जो है मुझे जेब खर्चे के लिए 1000 रुपए देता है, doesn't mean I'll go and sit in my neighbor's house. उसका मतलब नहीं है कि मैं अपने पड़ोसी के घर में जाके बैठ जाऊंगा, Because I'm a son of my house. क्योंकि मैं अपने परिवार का बेटा हूं। It doesn't matter even if it's a hut. और ये मायने नहीं रखता अगर ये झोपड़ी भी हो, I'm the son. मैं वहां का बेटा हूं, I'm not a slave here. मैं वहां पर दास नहीं हूं। So this mentality of being a son should be developed in a local church. एक स्थानीय कलीसिया में ये पुत्र होने की मनोभावना, सोच विचार हमारे अंदर तैयार करना जरूरी है। A couple of months back, कुछ महीनों पहले I reached church early मैं कलीसिया में थोड़ा जल्दी पहुंच and I was गया। just sitting outside. मैं बाहर बैठा हुआ था And this older couple came in the auto. और ऑटो में जो है एक बुजुर्ग परिवार आता है। They got on from the auto. वो ऑटो से उतरते हैं। They said, "Excuse me, sir." उनने कहा, They called me. उनने मेरे को बुला के बोला, सुनिए जरा, I have some suitcases and some bags. Can you come and please take it out of the car? और मेरे पास कुछ बक्से हैं, पेटी है, क्या आप उसको निकाल सकते हो? So 3-4 big suitcases. और 2-3 पेटियां, बड़े पेटियां। I had, I was wearing formals because it was a Sunday. और मैं फॉर्मल्स पहना हुआ था क्योंकि वो So रविवार था। I carried all those suitcases and boxes and I brought it out. और वो सारे बक्सों को निकाल कर मैं बाहर निकाल के लेकर आया। And he said, "Go and keep it in the corner near the entrance of that hall." और वो जो हॉल है उसके द्वार के वहां पर रख दीजिए। So I said, "Okay." I went and carried it and kept it there. और मैंने उसको उठाया और उस द्वार के किनारे में And then जाकर we रख दिया। began to talk. और मैं उसके बाद उनसे बातचीत He said करना he's शुरू। just come from another city. He's come to Bangalore and he was looking for a church, so he thought he'll come directly to the church. और वो कहीं और शहर से बैंगलोर में आए हैं और वो कलीसिया ढूंढ रहे थे, तो उनने सोचा कि सीधा कलीसिया में आ जाएं। So he came and he said, "Okay, thank you for coming." And we all went and sat. The prayer started. और मैंने उसको धन्यवाद दिया कि उन बुजुर्ग को धन्यवाद दिया, धन्यवाद जो आप आए, और हम लोग सब अंदर चले गए आराधना के लिए। Now after the worship, I came with the Lord's table. I came in front. और मैं कलीसिया में जो कार्य होने के साथ साथ प्रभु भोज के साथ इनके सामने आता हूँ। So I finished the sermon, everything, and after church, और कलीसिया में जो प्रचार है वो सब खत्म किया, और कलीसिया के बाद this man came and said, "Oh, I didn't know you're the pastor." और ये व्यक्ति आके बोलता, अरे मैं जानता नहीं था कि आप यहाँ के पास्टर I हैं, made such a big mistake. मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, Please forgive me. कृपया करके मुझे माफ कर दे। I said, "There's nothing to ask forgiveness. I just carried you're an old,
he's an older man. I just carried the suitcase, helped him out, and brought it here. उसमें क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? आप एक बुजुर्ग हैं, आपके सामान को थोड़ा लेकर आकर मैंने यहाँ पर रख दिया। I'm a son in the house of God. मैं अपने परमेश्वर के भवन में बेटा हूँ। And when we have visitors in the house of God, we better be good to them and kind to them. और जब हमारे कलीसिया में नए लोग आते हैं, अच्छा है कि आप उनके प्रति सेवा मनोभावना से जाएं। My work as a pastor in the church is not to sit with my legs crossed and tell everyone to do everything. और मैं जब एक कलीसिया का पासबान हूं, उसका मतलब नहीं है पांव पे पांव धर के वहां पर बैठकर दूसरों से काम करने को मैं कहूं। Put my hands in, I work. और मैं अपने उन कार्यों में, कलीसिया के कार्यों में अपना हाथ लगाता हूं और काम करता हूं। That's the responsibility of us as pastors. और मेरा और आपका जिम्मेदारी वो है एक पासबान के चलते। We demonstrate faithfulness. और हम जो है वफादारी को कार्य में लाकर We दिखाते हैं। serve as sons and daughters in the हम जो है church. बेटे और बेटी के समान कार्य करते हैं We receive correction in a good spirit. और सही आत्मा में जो है शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं। This is very difficult. ये बहुत मुश्किल है। You know, once we had rostered a young man to come and do the declaration. एक बार एक जवान को हमने बोला कि आओ घोषणा करो। To do the declaration. You've seen that, right? We do the declaration on Sunday. और जो घोषणा किया जाता है उसको आपने संडे को देखा है ना वो। So I told him, instructions were given to him. You know, you use one Bible verse and then you just, within 3 minutes, you should finish. और मैंने उसको एक निर्देश दिया था कि एक परमेश्वर के वचन में से इस्तेमाल करना और 3 मिनट में खत्म कर देना। He took 9 minutes. और उसने क्या किया? 9 मिनट ले लिया। I kept controlling myself मैंने अपने आप को रोक के रखा because I didn't want to go and embarrass him. It was the first time he's doing क्योंकि उसका वो पहली बार था, तो मैं उसको सबके सामने लज्जित नहीं करना it. चाहता था। My wife was sitting next to me. Don't go, wait. और मेरी सर की पत्नी जो है उनके बगल में बैठी थी और बोल रही थी मत जाओ। Somehow after that 9 minutes, I went and my whole sermon, I was thinking of this 9 minutes. और 9 मिनट के बाद सर जाते हैं वहां पे प्रचार करने के लिए। ये पूरा प्रचार के समय ये 9 मिनट मेरे दिमाग में था। I was disturbed. और मैं थोड़ा विचलित हो गया। But after the church, लेकिन कलीसिया के बाद I said, come and meet me. और मैंने उस जवान लड़के से कहा कि आओ मेरे से मिलो। I met him very kindly. I said, see, you were given 3 minutes. और मैंने बहुत ही प्रेम के साथ और दया के साथ उसके प्रति बोला, तुम्हें 3 मिनट दिया You गया, took 9 minutes. तुमने 9 मिनट ले लिया। Why? क्यों? Pastor, you know, actually this happened that I wanted to share this. I said, no. और उन्होंने कहा कि पासबान ऐसा हुआ, मुझे ये बांटने का मन किया, ऐसा किया। मैंने कहा ना, This is wrong. ये गलत है। 3 minutes is 3 minutes. 3 मिनट माने 3 मिनट, Because the church people, this is the church, this is the congregation is sitting there waiting for the word. क्योंकि ये जो है कलीसिया है, समूह बैठा हुआ, जनता बैठी हुई है ताकि वो प्रचार को सुन Now, सके। I know he felt bad, मेरे को मालूम है कि उसको बुरा लगा, but I know I had to bring correction. लेकिन मुझे मालूम था कि वहां पर सही करना जरूरी है। So the next time when he came, अगली बार जब वो आया, he finished in 2 minutes 50 seconds. और उसने क्या किया? 2 मिनट 50 सेकंड में खत्म कर दिया। It's good. वो अच्छा है। He took correction in the right way. उसने जो है सीख को सही रीति से लिया। So receiving correction is very important. और सीख लेना बहुत जरूरी है। Then we honor fathers and mothers in the church. हम जो है माता पिताओं को कलीसिया में सम्मान देते हैं। Right? Fathers and mothers could be elderly people, senior citizens within the church. और बुजुर्ग हो सकते हैं या फिर वयस्क लोग हो सकते हैं कलीसिया के अंदर जो माता पिता के रूप में हो। But they can also be spiritual fathers and mothers. और वो लोग आत्मिक माता और पिता भी हो सकते हैं। Right? So just respecting, honoring the fathers and mothers in the church. और माता पिताएं जो कलीसिया में हैं उनका सम्मान करें। Right? Holding people accountable. और एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ जो है सही रीति से। See, when it comes to spiritual mentoring, जब आत्मिक
सीख देने का आता है। Listen to this. Very, very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ध्यान से सुने। Deal with people's character first. पहले उन लोगों के चरित्र के साथ मतलब शिक्षित करें, Then you see the gifts and the grace of God upon their life. और उसके बाद उनके जीवन में क्या वरदान है, क्या तोड़े हैं, क्या है, उसके बारे में देखें। Character is higher than gifting. और चरित्र जो है वरदानों से ऊपर है। Your gift can take you to up the ladder. और आपके जो वरदान है ऊंचे पद तक लेके आपको जा सकते हैं, But it's only your character that can keep you there. और उस सीढ़ी के ऊपर जो है आपका सिर्फ चरित्र वहां तक रख सकता है। Otherwise, one moral failure, you'll fall right down till the ground. जो आप एक नैतिक रीति से गिर जाओगे, ऊपर से नीचे हो जाओगे। So it's good. Oh, worship leader, he knows so many songs, he can sing so well. अच्छा है कि वो आप आराधना चलाने वाले व्यक्ति हो, उसको बहुत गाने मालूम है। Oh, wonderful man! This person is very good in administration, or he's a good team leader. अरे वो बहुत अच्छा है कि वो नेतृत्व करने में टीम लीड अगुवे के समान वो बहुत अच्छा है। We all have different gifts. हम सबके अंदर अलग अलग वरदान है। But if my character is not right, those gifts are of no use. अगर मेरा चरित्र गलत है तो वो वरदान का कोई भी लाभ नहीं है। So as a spiritual father or mother or son and daughter, we must deal with our character first. और एक आत्मिक पिता या आत्मिक माता के चलते हमें पहले अपने चरित्र के विषय में देखना है। Saul was a jealous person. साउल राजा जो था एक ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति था। What happened? He could not mentor the next king. और क्या हुआ कि अगले राजा को वो सिखा नहीं पाया। So be accountable to each other. एक दूसरों के प्रति जो है विश्वस्त रहें। Develop community. और जो है समूह को तैयार करें। There are many points here what a community is. एक समूह क्या है, यहाँ पर बहुत सारा सूची दिया गया A है। community is I'll just take a few of them. मैं कुछ उसमें से लेना चाहता हूँ। Where we nurture one another, we relate to one another. एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक दूसरे को पोषित करते हैं। We serve one another. हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। We empower and equip one another. हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक We- दूसरे को बनाते We हैं। love one another. हम एक दूसरे से प्रेम करते We हैं work together to fulfill the vision of the church and the Great Commission. और कलीसिया के दर्शन और बड़ी कल्पना को जो है परमेश्वर की कल्पना को, सुसमाचार का कल्पना को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते It's a हैं। place where we support each other in our gifts and our callings. और हमारे बुलाहट के अनुसार और वरदानों के विषय में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाली जगह। It's a place where we work together as teams. और ये एक जगह है जहां पर एकजुट होकर हम काम करते हैं। Right? So these are different areas of what community is. ये है जो अलग अलग क्षेत्र जिसको हम समूह बोलते हैं। What community is not. और क्या है वो जो समूह में नहीं होना चाहिए। Right? Especially in our meetings, we must make sure that we are not talking all the garbage of this world. और हमें हमारे मंडली में ये बहुत ध्यान देना है कि दुनिया के सारे गंद विषयों को बातचीत ना करें। Right? We must ensure that we live as examples. हमें ये दृढ़ करना है कि ये गलत चीजों को होना नहीं। My teacher used to say this word, G-I-G-O, gigo. और मेरा जो शिक्षक है वो इस शब्द को इस्तेमाल करता है, GIGO, गिगो। Garbage in, garbage out. वो है कि कूड़ा बाहर और कूड़ा अंदर। No. Garbage in, garbage out. कूड़ा अंदर और कूड़ा बाहर। Oh, I said the ulta. Yeah. Sorry. So if we keep watching things and hearing things which is garbage, अगर हम निरंतर कूड़े को सुनते हैं और देखते रहते हैं, that was what will come out. वही चीज हमारे मुंह से भी आएगा। Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. हमारे हृदय के पूर्णता में से मुंह से बातें बाहर आता Don't है। allow any worldliness.
to कोई enter Christian communities. एक मसीही समूह के अंदर कोई भी दुनिया के बातों को या विषयों को प्रवेश करने की अनुमति ना दें। Community is not an escape of saying, okay, now I'm a believer, so I'll go to heaven, and everyone else can do whatever they want to do. समूह ऐसा जगह नहीं है जहां पर हमें बचाव मिल पाएगा कि अब तो मैं मसीह हो गया हूं, किसी ना किसी रीति से स्वर्ग में जाऊंगा। Right? So even as we get together as communities, जिस प्रकार से एक समूह के रूप में हम जब आते हैं, we must understand that we हमें should use our time carefully. हमें समझने की जरूरत है कि हमारे समय को उचित रीति से इस्तेमाल Our करना। community, our fellowship must be fruitful. हमारा समूह जो है, हमारा संगति जो है, फलदायी होना चाहिए। Right. What are some of the challenges that we may face when we go through this? और इस चीज को हम, इस प्रणाली को जब हम लागू करते हैं, क्या कुछ चुनौतियां हम देखते हैं। Sometimes people come to church, they just want to attend church and go back home. और कभी कभी जो है लोग कलीसिया आते हैं, वो सिर्फ उसमें भाग होना चाहते हैं और चले जाना They चाहते हैं। don't want to be part of any conference, life group. They don't want to be part of events. They're just happy on coming on Sundays and going. और वो लोग जो है किसी भी लाइफ ग्रुप में या कोशिका मंडली में या कॉन्फ्रेंस के भाग नहीं होना चाहते हैं, वो सिर्फ आना चाहते हैं कलीसिया के में और जाना चाहते हैं। So we as pastors must train and teach them the importance of being part of these fellowships. और हम एक पासबान के चलते ये सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक समूह का या कलीसिया का भाग होना कितना जरूरी है। And when there's a church with hundreds of people, hundreds of thousands, और एक कलीसिया जब 100 या 1000 लोगों से ऊपर है, people can feel disconnected and lost. और लोगों को ऐसा व्यतीत हो सकता है कि हम उनके साथ जुड़े नहीं So हैं। as pastors, we should find a way to close that gap. और एक पासबान के चलते हमें वो जो दरार है उसको भरने को कोशिश करना है। And then there are dangers of groupisms. और वहां पर जो है एक ग्रुप बनाने का एक चुनौती होता है। Again, we should identify them, break them, and teach the church why we should avoid these groups. और हमें वो देखना जरूरी है, और वो जो कुछ लोगों का ग्रुप जुड़ता है उसको तोड़ने की जरूरत है, और क्यों ये कलीसिया एकत्रित होता है उसको बताने की भी जरूरत है। All right? ठीक है, Okay, everyone okay? सब लोग ठीक है? Okay, so we'll stop here. We'll continue tomorrow from chapter 10. और हम लोग जो है यहाँ पर खत्म करेंगे और कल 10वें पाठ से शुरू करेंगे। Let's pray and close. हम प्रार्थना करेंगे और इसको मीटिंग को खत्म, इस क्लास को खत्म करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके स्थानीय कलीसिया के बारे में हमें सीखने के लिए आपने मदद किया। जो कुछ चीजें इसमें होना चाहिए और जो कुछ चीजें नहीं होना चाहिए पिता, क्यों जो कोई बातें महत्वपूर्ण है, जो कोई बातें नहीं होना चाहिए, उस विषय में भी हमने सीखा। आपके दास को आपने इस्तेमाल किया, आपके बेटे को आपने इस्तेमाल किया, ताकि ये ज्ञान हमारे अंदर जोड़ा जाए, बांटा जाए पिता, और अधिक उनको इस्तेमाल में लाइए। और हम में से हर एक व्यक्ति ने जिन्होंने ये क्लास को सुना है, ऑनलाइन हो या यहाँ बैठे हुए लोग, उस बातों को अपने जीवन में पिता परमेश्वर लागू करने पाए करके प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ से अभी विदा होते हैं, आपकी एकता और भाईचारे में हमें बढ़ा करके प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।